لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، کروٹ سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، فرض پڑھ لو، سنت چھوڑ لو۔ میرے پیارے انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب فیضی حافظہ اللہ، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث گڈا جھارکھنڈ، بڑے ہی موقر اور بزرگ شخصیت جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد جابر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور بار بار اس اجلاس کے لیے ہم کو فون کیے، رابطہ قائم کرتے رہے، اور جب تک تاریخ فکس نہیں ہو گئی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب جنہوں نے کافی محنت کی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام اور اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، رات کے تقریباً 1:30-2 بجے تک آپ نے اس خطاب کو، اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ اور بہار والوں کا بہت بڑا کلیجہ ہے کہ وہ پوری رات بیٹھ کر جلسے کو سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ اب عام بڑے بڑے شہروں میں یہ جلسے 11 اور 12 بجے کے بعد پھر فلاپ ہونے لگتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ واقعی بہت بڑا دل ہے آپ کے پاس جو اتنے رات تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین
آپ نے جو سنا ہے اور آپ کو جو سنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو اور اس پر ہم سب کو عمل کی پوری پوری توفیق۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 21ویں پارے سے، بلکہ 21واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر دو تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز بتائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے، اور ذکر الہی کا حکم ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیں، کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے، اس کو کہا گیا پڑھنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں، عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں
तला यतलू का माना आपको मिलेगा अरबी जबान में पीछे पीछे चलना, और उसी तला यतलू से इंपरेटिव सेंटेंस आता है, फेले अम्र आता है उतलू, जिसका अगर हम लुग़वी तर्जुमा करें तो यह तर्जुमा होगा कि पीछे पीछे चलिए उस किताब के जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई, यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है। पहले कुरान पढ़िए, समझिए और देखिए कि इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज के करने का हुक्म दिया है और किस काम के करने से हमें और आपको रोका है। जिस काम के करने का हुक्म दिया करिए और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाइए। इसका नाम है तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है। अरब के अंदर ऊंटनी के एक बच्चे को तिल्व कहा जाता है। जंगल में जो ऊंटनी चारा चरती हैं, खाती हैं घास वगैरह, और उस ऊंटनी का बच्चा जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, जहां माँ जा रही है वहीं बच्चा जा रहा है, जहां माँ जा रही है वहीं उसका बच्चा भी उसकी माँ के पीछे पीछे नक्शे कदम पे चलता है। तो अरब इस बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, यानी ये अपने माँ के नक्शे कदम पर चलने वाला बच्चा है, ये अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। इसीलिए जंगल के खतरनाक और डेंजर दरिंदों से और जानवरों से वो महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ के नक्शे कदम पे चलता, अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। अरब ऐसे ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, ये बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। इसी तिल्व से बना है तिलावत, इसी तिल्व से मुश्तक है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है तो जंगल के दीगर खतरनाक जानवरों के जुल्म और उनके शिकार से महफूज रहता है, उसी तिल्व से बना है तिलावत। उसी तरीके से तुम अगर कुरान के पीछे पीछे चलोगे, कुरान पर अमल करोगे, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, कुरान के मना करदा रास्तों से बाज आ जाओगे, तो जिस तरह ऊंटनी का बच्चा महफूज रहता है शर पसंद जानवरों के जुल्म और शिकार से, उसी तरीके से तुम भी महफूज रहोगे दुनिया के अंदर तमाम जालिम और बदतरीन कौमों के जुल्म से। क्यों? क्योंकि तुमने कुरान, जिस तरह माँ अपने बच्चे को खतरनाक जानवर के आने पर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करती है, उसी तरीके से जब हम कुरान की आगोश में आ जाएंगे तो कुरान हमारी हिफाजत फरमाएगा और कुरान हमारे लिए ढाल बन जाएगा और वो हमें तमाम जालिम और जाबिर कौमों से हमारी हिफाजत होगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब तिलावत का मतलब ये हुआ है। तिल्व ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं जो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी से तिलावत है। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, तुम भी कुरान के पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया की सारी बदकमाश कौमों के शर्र फितन से तुम महफूज रहोगे। अब नतीजा निकालिए, आज जो चाहता है हमें घंटे की तरह बजाकर चला जा रहा है, और जो चाहता है हमें जहां इस्तेमाल करना वहां हमको वो इस्तेमाल कर लेता है। मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने मजबूत नहीं किया। जहां कुरान करीम ने बहुत सी चीजों का हमें हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को मजबूती से थामने का भी हुक्म देता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
ईमानो वालों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत बढ़ जाओ। अल्लाह हमें मुत्तहिद रहने का हुक्म दे रहा है, और मुत्तहिद रहने का रास्ता क्या बताया है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इत्तेफाक का जो रास्ता बताया था वो था वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इत्तिसाम बिहब्ल, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम सब एक रहोगे, मुत्तफिक रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वला तफर्रकू, टोलियों में मत बढ़ जाओ। फिक़ह की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको मफ़हूम मुखालिफ निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत तक़सीम हो जाओ। आज हम जमातों में तक़सीम हैं, आज हम टोलियों में बटे हुए हैं। इसका मफ़हूम उल्टा निकालिए तो उल्टा मफ़हूम ये निकलता है आज हम टोली और जमातों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं। आज हम नजर डाल और अभी 2024 चल ही रहा है, एक महीने के बाद इलेक्शन का गहमा गहमी होगी, और आप देख लीजिएगा आपका इत्तेफाक, आपका इत्तेहाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखरेगा, हम और आप किस तरीके से बिखरेंगे। कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस जमात में जाएगा, कोई उस जमात में जाएगा, कोई इस गिरोह में जाएगा, कोई उस गिरोह में जाएगा। उसका नतीजा आप देख लीजिएगा। हमारा और आपका जो एम है, जो निशाना है, जो मकसद है, हम और आप अपने मकसद में नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है, हमारे अंदर इज्तिमाइयत नाम की कोई चीज नहीं। उसका नुकसान हम उठाएंगे। ऐ नबी, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ पढ़ी गई है। तिलावत का मतलब ये होता है कि कुरान को बहुत ज्यादा कसरत से, बहुत ज्यादा उसके नुस्खों को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक आयत पढ़िए और उस पर पहले अमल करके दिखाइए, फिर एक आयत पढ़िए, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखलाइए। सहाबा किराम के वाक़यात भरे पड़े हैं। एक आयत जैसी नाजिल होती है, आज उनके कानों में जाती है, फौरन पहले उसके ऊपर अमल करते हैं। नहीं, आगे का नहीं सुनेंगे, पहले इस पर अमल करके दिखा। आयत नाजिल होती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा साहबे किराम ने, आयत आई मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज हसना की जरूरत पड़ती है? फरमाया हाँ, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, फरमाया बदले में हमें क्या मिलेगा? जवाब दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे पास 2 बाग हैं, मेरे पास 2 गार्डन हैं, एक मदीने के ऊपर हिस्से में और एक मदीने के नीचे हिस्से में। अल्लाह के नबी, मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, मैंने दोनों बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ऐ अबू दहदा तुम ऐसा न करो, अगर तुम दोनों बाग सदका कर दोगे, अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तुम्हारी मईशत कैसे चलेगी, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारी बीवी और बच्चे फिर क्या खाएंगे? ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। तब हजरत अबू दहदा अंसारी ने एक बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना और एक अपने पास रख लिया। बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ
کتنا ہے؟ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی، فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ اب ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو، قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تب لاؤ پورا قرآن، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ہی لوگوں میں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے۔ ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر دو گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں، اور وہی گیتا اٹھائیں آپ، 6 ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بمبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے یوگیوچیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتمان راشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا یوگیوچیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتمان راشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سوئم کرتویہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ 2 رامائنیں بڑی مشہور ہیں۔ والمیکی رامائن کہتی ہے رامم بھگوانم رام بھگوان، اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پروشوتم، رام مریادا پروشوتم ہے، یعنی انسان ہے بھگوان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے، یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رامائن 2 ہیں۔ والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے، اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی۔ یہی حال ویدوں کا بھی ہے۔
यही हाल स्मृतियों का भी है और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में चेंजिंग हो गई और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, मिन वहां जिस तरीके से था आया उसी तरीके से मौजूद है, आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद, नऊजुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए जो अली के बारे में थे, जिब्रील जो नाजिल किए थे लेके आए थे, और वो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होगा, मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक मिनवान सेम टू सेम हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएं, आज भी अगर चाहें कि कुरान का एक नुक्ता बदल दें तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती हैं। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देख लो। यहूदी अपना तौरात लाएं, ईसाई अपनी इंजील लाएं, हिंदू भाई अपने वेद लाएं, बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लाएं, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आए, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले आए, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आए, एक मैदान में जमा कर दें, एक मैदान में रख दें। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दें। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिखिज्म गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी की सारी कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाएं। उसके बाद फिर कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें
जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिखिज्म, न बुद्धिज्म, न गुरु ग्रंथ, न जैनिज्म, कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है, इसलिए कि इन किताबों का कोई हाफिज नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो, तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वन्नास तक सुना देगा, और वो दूसरे दिन कुरान छपकर लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने के बाद जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती हैं, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10-10 साल के बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है, उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। ओ तुल्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था। इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हस्सान इब्ने साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां पर। गौर कीजिएगा, अल बिदाया वन नहाया में हाफिज इब्ने कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है। 3 लाइनें लिख दी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, ये अशार जो हैं वो हस्सान इब्ने साबित के हैं। देखना चाहते हैं, देखें लोगों का नजरिया, इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना आतैना कल कौसर। अरे ये कैसे शेर हैं? 2 लाइन का एक शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हैं हस्सान तो 1 लाइन और होनी चाहिए। ये 3 लाइन का शेर कौन सा है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर मान लिया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, एक और लाइन कहां चली गई? 1 लाइन और होती तब तो 2 शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें हुई, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते हो नशार के अंदर तो हस्सान इब्ने साबित को बुलाओ, उनको अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया जाए, उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नामी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ, मुझे 1 रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ, तुम 1 रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, पढ़ रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया।
कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लटका रहा नकल कौसर फसल रब्बी का वनहर नशानिया का वलतर। वो शायर जो सबसे बड़ा शायर था, उसने कमी निकालने के लिए एक रात मांगी, लेकिन वो भी रात भर लगा रहा, कोई कमी नहीं निकाल पाया। तो उसने कहा चलिए कोई कमी तो नहीं निकल रही है, इसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा देता ताकि 2 शेर हो जाए। उसने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा दी, इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे उसने एक लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी। सुबह होके जब लोग आए, कहा कि भाई कुछ कमी निकली, कि हाँ निकल आई, जाओ और देख लो। हसन इब्न साबित के अशार मुकम्मल नहीं थे, एक लाइन की कमी थी, मैंने उसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी है। अब वो मुकम्मल 2 शेर हो गए हैं, 2 अशार हो गए हैं, आप जाकर देख लीजिए। लोगों ने जब दरवाजा खोला और खाने काबा के अंदर घुसते हैं, उसकी दीवार पर लिखे हुए ये 3 आयतों के बाद 4थी लाइन पर नजर पड़ती है। उस 4थी लाइन पर